Hi students, how are you? I hope you all are fine. So I am here finally, your English teacher Ram Sharma. As I told you, today is our first class. आज हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में what topic we will choose to discuss? कौन सा टॉपिक है जो हम पहले डिस्कस करेंगे? अच्छा, I'll clear very first. That means कि हम bilingual use करेंगे. We will use bilingual to interact the concept of the topic we will discuss. दोनों स्टूडेंट्स में मेरा फोकस रहेगा, हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो. अच्छा, टॉपिक कौन सा यूज़ करें? तो आई टेल यू कि हम आज सबसे पहले बात करेंगे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. टू लर्न अ लैंग्वेज, द इम्पोर्टेंट पार्ट, द इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज अ सेंटेंस. Even it's a very basic concept about a sentence, but how we can make creative or how can we make a impressive to learn about a sentence. As maybe you all know about construction of a sentence, so no matter, we will discuss on a sentence frame. So our topic is elements of a sentence. As you have seen on our page, the topic of our today's class is elements of a sentence. So you answer me. You just try to guess, to frame a sentence, how many elements we require. Can you guess? Okay, now take time to guess. Okay, let me guess. Maybe you can think at least 2, 3, some of you can say 4, maybe some of you can say 1. So let's discuss कि क्या ये सही है नहीं है. So before I start, you have seen on the board something is written, and here the written is Ram Sharma English Cafe, the name of our channel. Now here my WhatsApp number. If you have any queries, you can ask me here. And if you think you are satisfied with our class, so you may like, share and subscribe, and don't forget there is a bell icon. You can press the bell icon to get the further notification. So right now I wipe off. So our topic is the very first topic we have taken, that means elements of a sentence. So we discuss here first why we choose this topic. It's a very basic topic, we can say here. Maybe in your mind question raised, that means what elements are. Elements क्या है? So first of all we will discuss on elements कि elements कौन कौन से हैं. They are used to frame a sentence, जो sentence को बनाने के लिए हमें use करने हैं. So now can you guess, क्या बता सकते हैं कि वो elements कौन कौन से हैं? चलें तो हम बात करते हैं एक बार. You know that कि if I ask you a pattern of a sentence in English language, to frame a sentence आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं. So you can guess. So आपके माइंड में सबसे पहले जो चीज़ निकल के आएगी, very basic concept you have in your mind, subject, verb and maybe object. Now before discussing elements of a sentence, the topic throughout, you may answer me minimum elements कितने होने चाहिए. My question is कि minimum elements कितने हो. Yes, you may guess. What's your answer? 3, because you can see here. Yeah, maybe your perception you have in your mind. Okay, now 2. Maybe some of you can think 1. Yeah, 1. Is it right? क्या एक भी एलिमेंट हो सकता है सेंटेंस में? Only one element? What's your answer? Right. Yes, it can be. Answer is yes. But there is a condition. लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन है कि वो एलिमेंट कौन सा होना चाहिए. एक्चुअली हम बात जो कर रहे हैं एलिमेंट्स को लेकर के, इन एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए. सेंटेंस स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए, या आप कह सकते हैं पैटर्न को फ्रेम करने के लिए. There are so many patterns of a sentence in English grammar. Here we start to discuss very basic patterns. हम बेसिक पैटर्न्स के बारे में जानकारी करेंगे.
अच्छा, यहाँ बात कर रहा था एलिमेंट्स को लेकर के, तो आपके माइंड में ये जो चीज़ आई, फिर मैंने आपसे एक प्रश्न किया, पुटअप किया कि मिनिमम एलिमेंट्स क्या होंगे। ये मिनिमम एलिमेंट्स हैं, आपने गेस किया 3 2 1, और जब बात की 1 की तो हमने कहा कि इज इट राइट, देन आंसर इज यस, बट देयर इज अ कंडीशन। व्हाट कंडीशन? इट मस्ट बी अ वर्ब, इट मस्ट बी अ वर्ब, ये होना चाहिए वर्ब। नाउ मे बी हो सकता है कि माइंड में क्वेश्चन हो कि अब ये वर्ब क्या है। वर्ब इज अ एलिमेंट, एनी वर्ब इज अ टॉपिक इन ग्रामर आल्सो, वी विल डिस्कस लेटर। बट अभी हम बात करें कि अगर एक वर्ब ही एक सेंटेंस का काम कर रही है तो वो सेंटेंस क्या होगा, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज। तो इस सेंटेंस को वी से इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लाइक, most probably a teacher asks you, look, see, read, write. I have written here 4 words. All these 4 words are used as a separate sentence. Depends on reference. हम बात कर रहे थे लुक, सी, रीड, राइट, ये चारों वर्ड्स अगर इंडिविजुअली लिखे हैं तो एक सेंटेंस हो सकते हैं। कब? जब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में। अच्छा, हमारी बात थी कि मिनिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, तो आंसर हुआ 2। जनरली अगर हम बात करें एक सेंटेंस के मिनिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट पैटर्न ऑफ द सेंटेंस इन इंग्लिश, तो उसमें हम बात करेंगे 2। वो 2 कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसका हम बात करें तो वो 2 हो सकते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब। फिर अगेन वन मोर कंडीशन वी हैव हियर, वो ये कि आपका सेंटेंस वर्ब पे ही एंड होना चाहिए। तो ये वर्ब कौन सी वर्ब होगी जहां पर सेंटेंस आपका एंड हो जाएगा। अब यहाँ हमने वर्ब को भी समझना होगा, और वर्ब को जो समझेंगे तो उसी के आधार पर, क्योंकि इवन अगर इफ वी टॉक अबाउट पैटर्न, अगर हम बात करें पैटर्न की, तो ये पैटर्न जो बेस करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, वर्ब के ऊपर बेस करेंगे। व्हाट कम्स आफ्टर वर्ब, इट विल बी डिसाइडेड बाय वर्ब। व्हाट काइंड ऑफ वर्ब यू यूज टू फ्रेम अ सेंटेंस, आप कौन सी वर्ब सेंटेंस को बनाने में यूज कर रहे हैं, उसी वर्ब के अकॉर्डिंग आगे वाला एलिमेंट डेफिनेट होगा, डिसाइड होगा। फिलहाल हम यहाँ बात करें कि अगर यही हमारा सेंटेंस है और एक स्मॉलेस्ट पैटर्न ऑफ द सेंटेंस इन इंग्लिश वी हैव, तो यहाँ ये वर्ब कौन सी होनी चाहिए, डू यू नो? तो बात करें इस वर्ब को हम कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। व्हाट डू वी कॉल? इंट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको आप कहते हैं अकर्मक क्रिया, एक ऐसी क्रिया जिसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता, एक ऐसी क्रिया जिसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता। So now an example you have, so many examples you can write and you can remember in your mind. So I write here one sentence, he runs. Is it a complete sentence? Yes, it is a complete sentence, because this verb doesn't need to extend sentence. You can extend your sentence. आप sentence को extend कर सकते हैं, but it doesn't require here right now. Like you can extend your sentence. Suppose that कि you extend your sentence, he runs fast. Now you tell me, here you have seen that means कि ये he क्या है यहाँ पे subject और ये runs क्या था, verb. In this अगर हम बात करें इस sentence में, another sentence, he is a subject, runs is a verb, and now here the fast, ये जो word fast नजर आ रहा है वो क्या है? मोस्ट प्रोबेबली अगर हम जनरल आइडिया की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम आपकी बात करें तो आप जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि ये भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, तो आपको ये समझना होगा कि ये इसका यहाँ पे फंक्शन क्या है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम बात करें कि अब नाउ यू आंसर मी, एक बात आप मुझे बताएं, इज इट नेसेसरी टू राइट फास्ट हियर? हाँ, अगर आप सेंटेंस को एक्सटेंड करना चाहते हैं टू टेल अबाउट द मैनर, then you can use fast here. Without fast, sentence is complete or not, you answer me. क्या fast के बिना sentence complete है नहीं है? Yes, it is complete sentence because sense is completed here, right now. तो sense यहाँ पर already complete है, implied sense है, so we don't need to extend your sentence. If you require, then you can extend your sentence. चलें, तो अब हम आगे बात करें कि ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। अब ये जो एलिमेंट था वो क्या था, इसको भी हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपके पास में एक पैटर्न नजर आ गया, आपके सामने एक पैटर्न निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहाँ ये वर्ब कौन सी होनी चाहिए, इंटेंसिटी वर्ब। इंटेंसिटी वर्ब उस वर्ब को हमने कहा जिसके बाद में क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता।
चलें ठीक है। अब इसके आगे हम देखें, आगे हम चलें तो मैं एक वर्ब का क्लासिफिकेशन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हम आगे वाले पैटर्न्स को लेके आने वाले हैं और फिर मिनिमम एलिमेंट्स के साथ साथ मैक्सिमम एलिमेंट्स से ऊपर भी जाने वाले हैं। अगर एक वर्ब का क्लासिफिकेशन करूँ, जनरल क्लासिफिकेशन में कर रहा हूँ, जैसे अभी हमने कहा कि इंट्रांसिटिव वर्ब, तो आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि आपने सर एक पॉइंट बता दिया, प्रकार बता दिया, इसको आपने कह दिया कर्मक क्रिया। तो दूसरी जो वर्ब है जनरली आपकी हिंदी में तो माइंड में आ ही चुका है, जिसे आप कहते हो सकर्मक क्रिया। ये जो सकर्मक क्रिया होती है उसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसे आप कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब व्हिच इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, और ये वर्ब जिसके बाद में हम क्या यूज नहीं कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे। चलें, सो नाउ लेट्स सी, अगर इन दोनों वर्ब के कॉम्बिनेशन से हम अगर एक सेंटेंस फ्रेम करें, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो इस वर्ब के साथ में जो पैटर्न बना वो पैटर्न बना एस प्लस बी। Another sentence we can write here, like हमने कहा he wrote a story. He wrote a story. So now let's see, यहाँ जो wrote है वो verb है और ये ही क्या है? Subject. अच्छा, इसको identify कैसे करेंगे? Which verb is transitive or which verb is intransitive? So very simple example we have here, very simple concept we have here. What? If your verb replies generally what or whom, that verb is known as transitive verb. If a verb replies what or whom, that verb is generally known as transitive verb. It's a general indication to identify transitive verb when a sentence is given to you to analyze. Okay now. So now let's see. Here, when I write the word fast, you answer me, क्या ये fast word what or whom को reply कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. Just try to ask a question with the verb using words what or whom. If a verb replies what or whom, that verb is known as transitive. और अगर reply नहीं करे तो वो intransitive verb. So here we have seen कि यहाँ पर ये verb runs जो है what और whom को reply नहीं कर रही. यहाँ ये जो रिप्लाई कर रही है वो किसको रिप्लाई कर रही है? हाउ को. आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है. फिलहाल इसको मैं क्वेश्चन मार्क करके ड्रॉप कर रहा हूँ. फिलहाल वहीं पे आ जाते हैं अपन. यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, व्हाट और हुम, यह हमने बात की. तो ये जो पैटर्न निकल के आ रहा है, अभी एक काम करते हैं कि हाँ हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि उसने क्या लिखा, तो आपके पास आंसर निकल के आ रहा है. उसने एक कहानी लिखी, तो इस इट मीन्स ये जो वर्ब है वो किसका रिप्लाई कर रही है? व्हाट का रिप्लाई कर रही है. तो यहाँ ये जो एलिमेंट नजर आ रहा है इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा ऑब्जेक्ट. सो नाउ द पैटर्न ऑफ द ट्रांसिटिव वर्ब, अगर हम बात करें ट्रांसिटिव वर्ब के साथ जो पैटर्न निकल के आ रहा है वो आ रहा है एस प्लस बी प्लस ओ. सो हियर वी हैव टू पैटर्न्स. हमारे पास दो पैटर्न निकल के आ गए. पहला पैटर्न हमने देखा एस प्लस बी. देयर इज अ कंडीशन, ये वर्ब होनी चाहिए इंट्रांसिटिव वर्ब. द नेक्स्ट पैटर्न वी हैव हियर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इट मीन्स यहाँ ये जो वर्ब है इसको हमने कहा ट्रांसिटिव वर्ब. अ वर्ब विच इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसिटिव वर्ब. सो देयर आर टू पैटर्न्स वी हैव लर्न हियर according to the definition of the verb. Simple classification we have done here, and now you can answer with the help of the words what kind of verb you have used in a sentence when a sentence is given to you.